Morning students, how are you? I hope you will find and stay home and continue your study. Today we are going to learn English class 9 chapter 1, and this chapter I have taken from your health book Moments, and the name of the chapter is The Lost Child. Okay? In today's lecture we will learn the chapter The Lost Child, and it has been written by Mulkraz Anand. Okay, the author is Mr. Mulkraz Anand. Before we start, let's take a glimpse about the author. Author के बारे में कुछ देख लेते हैं. He was born on 12 December 1905 in Peshawar. Now it lies in Pakistan, in undivided India. He was born in 1905 and he died on 28 September 2004 in Maharashtra, India. Okay. I repeat, he was born on 12 December 1905 in undivided India, Peshawar, Pakistan. Okay. And he died on 28 September 2004 in Maharashtra, India. Okay. He was an Indian writer in English language. He was an Indian writer in English, and he was a very famous writer of his time. He had created a lot of creations and notable for his depiction of the life of the poorer castes in traditional Indian society. He did his work about the poorer castes in traditional Indian societies. उस समय पारंपरिक भारतीय समाज में जो गरीब तबके के लोग थे, उनके बारे में इन्होंने ज़्यादा लिखा. इनकी जितने भी कृतियाँ हैं, जितने भी इनके क्रिएशंस हैं, नॉवेल्स हैं, उन नॉवेल्स में इन्होंने उस समय के ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटीज को पिक्चराइज किया है और खास करके पुअरर कास्टेस को इन्होंने हाईलाइट किया है. ओके. द नोटेबल अवार्ड्स, ही अचीव्ड मेनी नोटेबल अवार्ड्स लाइक साहित्य अकेडमी. ही गॉट साहित्य अकेडमी in 1971 by Indian government, and he got Padma Bhushan in 1968. Okay, and he got International Peace Prize in 1953. Okay. Now let's take a look on notable work, Coolie and Untouchable. These are the two immortal creations of the writer, Coolie and Untouchable. Now we have discussed a short term about the author, and now we are going to start our chapter The Lost Child. Okay, we are going to start our chapter The Lost Child, and I request all of you, please open your book Moments chapter 1, and we will continue our study The Lost Child chapter number 1. Okay. Now, dear students, we are going to start the chapter. The name of the chapter is The Lost Child. Okay. This chapter tells a story of a little boy who goes in a fair with his parents and he lost somewhere. यह जो चैप्टर है एक छोटे से बच्चे के बारे में है. He goes in a fair with his parents. वह अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने के लिए जाता है. He looked at different fascinating things in the fair. The things attracted him. He was attracted towards the various fascinating items in a fair as a child does. जैसा कि छोटा बच्चा करता है, वो बच्चा भी मेले में जाने के बाद बहुत सारे आकर्षक चीजों को देखता है. एंड ही गॉट फैसिनेटेड. वह आकर्षित हो जाता है. ही वॉन्ट्स देम. वह उन्हें
प्राप्त करने की इच्छा रखता है. He desires to owe them and he tells to his parents. वो अपने पेरेंट्स से कहता है that I want them, I want balloon, I want ice cream, I want the flowers, etc. But the parents refuses to give him. उसके पेरेंट्स जो है उन सारी चीज़ों को देने से मना कर देते हैं. He became very sad. वो बहुत उदास हो जाता है. And the story continues. When a time comes that another person wanted to give him the things he wanted to achieve. जो चीज वो चाहता था वही चीज एक दूसरा आदमी उसे देना चाहता है. उसके पेरेंट्स नहीं बल्कि कोई और, एक अनजान आदमी. तो उस समय उस लड़के के मन में वो सारी इच्छाएं जो अपने पेरेंट्स के साथ थी अब वो नहीं रही, क्योंकि अब वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुका था. अब उसके साथ उसके पेरेंट्स नहीं थे बल्कि एक अनजान सा आदमी था. एंड दिस स्टोरी highlights the bond of love. This story highlights the bond of love and affection of a child who shares it with his parents. यह जो स्टोरी है यह प्रेम के बंधन को हाईलाइट करती है, दिखाती है कि किस प्रकार से एक बच्चा अपने माता पिता के प्रति स्नेह से बंधा होता है, प्रेम से बंधा होता है. और कोई भी छोटा बच्चा हो या फिर बड़े हो, आप लोग हो, कोई भी हो जिनका अपने माता पिता के प्रति अफेक्शन हो, लव हो. तो अगर आपके पास आपके माता और पिता है, इसको मैं इंग्लिश में कहूँ, इफ यू हैव एवरीथिंग बट नो पेरेंट्स, इट सीम्स यू हैव नथिंग. अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन माँ बाप नहीं है, ऐसा लगेगा आपके पास कुछ नहीं है. इट सीम्स अ लोनलेस, एक अकेलापन, एक वैकेंट सा आपको महसूस होगा. बट इफ यू हैव नथिंग बट पेरेंट्स, अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन माता पिता हैं, इट सीम्स यू हैव एवरीथिंग. तो ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है. तो ये जो स्टोरी है कुछ इस प्रकार से ही एक लड़के के लव और अफेक्शन के बॉन्ड को दिखाती है, हाईलाइट करती है, जो कि वो शेयर करता है अपने पेरेंट्स के साथ. ओके, लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. एक छोटा सा बच्चा था जो अपने माता पिता के साथ मेला में घूमने के लिए जाता है. वहाँ पे मेले में जाने के बाद वो तरह तरह की मिठाइयाँ और खिलौने वहाँ पे देखता है और उनके प्रति वो आकर्षित हो जाता है, जैसा कि छोटे बच्चों की आदत होती है. ओके, बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर देम. लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके लिए नहीं खरीदते हैं. कोई ना कोई बहाना लगा करके वो उसे टाल देते हैं. Why then does that he refuse when someone else offer them to him? अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ देर बाद उसके माता पिता नहीं बल्कि कोई और उस बच्चे को ये सारी चीजें दिलाना चाहता है, ऑफर करता है. बट द चाइल्ड रिफ्यूजेस. लेकिन जो बच्चा है वो चीजों को लेने से मना कर देता है. What was the reason behind it? When the child was with his parents, जब बच्चा अपने माता पिता के साथ था, he wanted many things. He saw in the fair. He wanted the sweets, the flowers, the toys, the roundabout, many things. But when he lost his father, when he lost his mother, and there is somebody else who offered him all things that he wanted, but he don't want to take them. He refuses them all. Okay? वो सारी चीजों को क्या कर देता है? इनकार कर देता है. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged the gaily clad humanity.
वसंत ऋतु के समय कोई त्योहार था। उस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए गांव में मेला लगा था। गांव से निकलने वाले रास्तों पे बहुत ही खुशमिजाज लोग जो है मेले के तरफ हंसते खिलखिलाते हुए जा रहे थे। Some walked, some rode on horses, some others sat being carried in bamboo and block carts. उन सारे लोगों में कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़े की सवारी कर रहे थे और कुछ बैलगाड़ियों में बड़े आराम से खुश मिजाज हंसते हुए खिलखिलाते हुए इन glittering eyes, smiling face. ओके, लोग मेले के तरफ जा रहे थे। One little boy ran between his father's legs, dreaming over with life and laughter. और जीवन के तमाम हर्ष और उल्लास के साथ एक छोटा सा बच्चा जो अपने पिताजी के पैरों के बीच से निकलता हुआ, उनके अगल बगल से गुजरता हुआ, नाचता हुआ, कूदता हुआ, एकदम खुशी पूर्वक उछलता हुआ मेले की तरफ बढ़ रहा था। ओके, यू टेक योर बुक्स एंड मैच द लाइन्स। कम चाइल्ड कम, कॉल हिज पेरेंट्स। उसके माता पिता उसे बुलाते हैं, बच्चे इधर आओ। ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज, द सोप दैट लीड द वे। और जैसे ही वो रास्ते में चलते जाते हैं, रास्ते में बहुत सारी दुकानें खिलौने की होती हैं, दुकानों पे खिलौने लगे होते हैं। उन खिलौनों को देख करके वो छोटा सा बच्चा आकर्षित हो जाता है, फैसिनेटेड हो जाता है और वो उन खिलौनों को, अपनी नजरों को उन खिलौनों से हटा नहीं पाता है और उन खिलौनों को एकटक देखता ही रहता है, जिससे कि उसकी जो स्टेप्स हैं, उसके जो कदम हैं वो थोड़े स्लो हो जाते हैं और वो थोड़ा पीछे हो जाता है। ओके, He hurried towards his parents, और जैसे ही उसे लगता है कि वो थोड़ा पीछे हो गया, वो जल्दी से दौड़ करके भाग करके अपने पेरेंट्स के साथ हो जाता है। His feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. और जैसे ही उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया, उसने अपने पेरेंट्स के आवाज का आदर किया। वो वहां पे रुका नहीं। जैसे ही उसे लगा कि कोई मुझे आवाज दे रहा है, कोई नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स उसे आवाज दे रहे हैं, वो उनके आवाज की तरफ भागा। लेकिन उसकी जो नजरें थी वो अभी भी उस खिलौने के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो गया था उन खिलौनों को देख करके। As he come to where they had stopped to wait for them, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. और बुलाने के बाद जैसे ही वो लड़का अपने माता पिता के पास पहुंचा, जहां वे उसका इंतजार कर रहे थे, वहां पहुंचने के बाद उसने अभी अपने हृदय में उन खिलौनों के प्रति दबी हुई इच्छाओं को प्रकट करना चाहा, लेकिन उसे इस बात का भी अंदाजा था कि हमेशा की तरह किस प्रकार से कोई चीज मांगने पे उसके पेरेंट्स जो है एक रिफ्यूजल, एक मनाही भरा आंख, एक जो ग्लेयर है वो उसको दिखा सकते हैं। मतलब कि अगर वो जानता था कि अगर उसने इन सारी चीजों की डिमांड करी उनसे, तो वो उसको आंख दिखाएंगे और आंखों ही आंखों में उसको क्या करेंगे, मना कर देंगे कि ये चीज तुम्हें नहीं लेना है। वो जानता था क्योंकि वो उनकी पुरानी आदतें थी, वो हमेशा ऐसा ही करते थे। I want that toy, he pleaded. और ये सारा कुछ जानते हुए भी उसे अच्छी तरह से पता था कि मैं इन सारी चीजों को अगर मांगता हूं तो जवाब में, रिप्लाई में मुझे एक रिफ्यूजल मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो जो है अपने डिजायर को दबा नहीं पाया। He didn't suppress his desire and he told, I want that toy, he pleaded. और उसने अपने माता पिता से प्रार्थना किया कि मुझे खिलौने चाहिए। His father looked at him red-eyed in his familiar, triumphant
और जैसा कि वो जानता था, जैसे ही उसने बोला कि मुझे ये खिलौने चाहिए, उसके पिताजी ने उसको घूरा, बिल्कुल आंखें लाल करके उसके तरफ घूर करके देखते हैं और मानो ऐसा लगता है कि वो उसे आंखों ही आंखों में कह रहे हो कि तुम्हें खिलौने की कोई जरूरत नहीं है। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" और उसकी माँ जो है वो दिन भर की स्प्रिट में मेल्ट हुए, नेचर की ब्यूटी को देखते हुए अपनी उंगली जो है उस बच्चे को थमाते हुए बोलती हैं, देखो बाबू, देखो बेटे, तुम्हारे सामने क्या है। वो उसको नेचर की तरफ, उसका ध्यान उस खिलौने से हटा करके उस नेचर की तरफ ले जाना चाहती हैं, जो कि उनके आंखों के सामने मीलों तक खूबसूरत नजारे लिए हुए बैठा था। ठीक है, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। क्या था यह? एक सरसों का खेत था जिसमें कि पीले फूल लगे हुए थे। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, सरसों वगैरह होते हैं खेत में। तो जैसे ही वो लोग मेला देखने के लिए जा रहे थे, वो उसका ध्यान जो है उस नेचर के प्रति ले जाना चाहती है उसकी माँ, और बोलती है कि लुक व्हाट इज बिफोर यू, देखो तुम्हारे सामने क्या है। एंड इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और यह जो था फूलों से भरा हुआ, फूलों से लगा हुआ सरसों का एक क्या था, खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। और जिस प्रकार से उन फूलों को देखने से, जो कि मीलों मील तक फैली हुई थी, जहां तक निगाहें जा सकती थी, वहां जो है फील्ड उस मस्टर्ड के फ्लावर से, सरसों के फूल से भरे हुए थे। और उस खेत के उस पार कुछ जो है भूमि नजर आ रही थी, और वो खेत देखने से ऐसा लग रहा था मानो पिघला हुआ सोना जो है खेतों में पसरा हो, बिखरा हुआ। ठीक है, a group of dragonflies were bustling about to their gaudy and purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। और उन्हीं खेतों के ऊपर क्या होता है, कुछ टिड्डे, कुछ पतंगे जो होते हैं, कीट पतंगे, इधर उधर अपने पंखों को फैला करके उड़ते हैं, और वो एक मधुमक्खी को परेशान करते हैं। एक अकेली मधुमक्खी, एक ब्लैक बी, जो कि नेक्टर के सर्च में फूलों के आसपास इधर उधर उड़ रही थी, स्वीटनेस के तलाश में, मधुरता के तलाश में, सुगंध के तलाश में वो फूलों के आसपास वो अकेली जो मधुमक्खी थी उड़ रही थी। कुछ टिड्डे, कुछ ग्रास हॉपर्स अपने पंख फड़फड़ा करके इधर उधर उड़ के उसके आसपास उड़ करके उसके ध्यान को क्या कर रहे थे, भटका रहे थे। ऐसा कुछ खेतों में चल रहा था। The child followed them in air with his gaze। और जैसे ही बच्चे की नजर उन टिड्डियों पे गई, वो जो है एक तरफ उनके तरफ देखने लगा और उनका पीछा करने लगा हवा में। वो हवा में इधर उधर उड़ते और वो बच्चा जो है उनके तरफ देखते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगा। ओके, till one of them would steal its wing and rest and he would try to catch it। और तभी क्या होता है कि उन बहुत सारे टिड्डियों में से एक टिड्डी जो है वो अपने पंख को आराम देता है और कहीं एक जगह जाकर के शांत बैठ जाता है। तभी क्या होता है कि वो जो छोटा बच्चा है वो उस टिड्डी को पकड़ने की कोशिश करता है। ओके, बट इट वुड गो फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो उसके नजदीक जाता है, उसने जोर से अपने पंख फड़फड़ाए और फ्लैटर करता हुआ हवा में ऊपर क्या जाता है, उड़ जाता है। When he had almost caught it in his hand, और एक बार क्या होता है कि लगभग जो है वो उस टिड्डी को अपने हाथ में पकड़ ही लेता है, तभी अचानक वो उसके हाथों से छूटते हुए अपने पंख को फड़फड़ाते हुए फ्लैपिंग हिज विंग्स he fly up into the air, up in the air, वो जो है हवा में ऊपर उड़ जाता है।
Then his mother gave a cautionary call, और तभी उसकी माँ ने उसे बुलाया, आवाज दिया, come child, come on the footpath। और उसकी माँ ने बुलाया कि सुनो बच्चे, आओ इधर आ जाओ और फुटपाथ पे आ जाओ, पगडंडी पे आ जाओ। क्योंकि रास्ते में चलते चलते वो जो था उस ग्रास हॉपर, उस टिड्डियों के पीछे जाते जाते पगडंडी से उतर गया था, खेतों में चला गया था। तभी उसकी माँ ने उसे आवाज लगाया कि वहां से जल्दी आओ और फुटपाथ पे, पगडंडी पे आ जाओ, जिससे कि हम लोग आगे चले जाएं। ठीक है। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. और वह प्रसन्न चित्त मुद्रा में थोड़ी देर तक अपने माता पिता के साथ चलता रहा, लेकिन फिर भी वो जो भंवरे थे, वो जो टिड्डियां थी, वो जो कीट पतंगे थे, वो उसे बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। वो जो लड़का है, जो छोटा सा बच्चा था, वो उन कीट पतंगों के प्रति बहुत ही आकर्षित हो रहा था। वो जो है उनको देख रहा था कि किस प्रकार से वो फुदक रहे हैं, किस प्रकार से वो उड़ रहे हैं। और वो जो टिड्डी थे वो एक फ्रेश मॉर्निंग में, एक बहुत ही ताजी सुबह में धूप लेने के लिए निकले हुए थे और खेतों में इधर उधर क्या हो रहे थे, उड़ रहे थे। तभी लड़के की नजर उन पे गई और वो पूरी तरह से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड हो गया उनके प्रति। Come child, come, his parents called from a shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a wall। और तभी अचानक उसके माता पिता दोबारा उसको आवाज लगाते हैं, आओ बच्चे इधर आ जाओ। उसके माता पिता थोड़ी आगे चले जाते हैं और आगे जाकर के एक झुरमुट के छांव में, एक छोटा सा झुरमुट होता है, उस झुरमुट के छाया में एक दीवार के कोने पे बैठ करके थोड़ा सा आराम करते हुए उस बच्चे को बुलाते हैं कि वापस आ जाओ तुम हमारे पास। ठीक है। He ran towards them, और जैसे ही वो उसको आवाज लगाते हैं, वो बच्चा दौड़ के अपने माता पिता के पास चला जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। और जैसे ही वो झाड़ियों में, झुरमुट में प्रवेश करता है, उसके चेहरे के ऊपर कुछ फूलों की जो है एक तरह से बरसात होती है। कुछ फूल जो है उसके चेहरे पे टकराते हैं और टकराने के बाद उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ओके। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और जैसे ही वो फूल उसके चेहरे पे टकराते हैं, वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। He began to gather the raining petals in his hands, और जैसे ही वो लड़का उस झुरमुट में प्रवेश करता है, उस झुरमुट में लगे हुए कुछ फूल जो है उसके चेहरे से आ टकराते हैं। उसे बहुत ही आनंद का अनुभव होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। He felt very fascinated and he forgot his parents। वह अपने माता पिता को क्या होता है, भूल जाता है। और उसके चेहरे से लगने के बाद फूलों के कुछ पेटल्स जो हैं, कुछ पंखुड़ियां जो हैं जमीन पे गिर जाती हैं। वो उन पंखुड़ियों को अपने नन्हे हाथों में क्या करने लगता है, बटोरने लगता है। ठीक है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands। और जैसे ही वो वहां पे रुक करके उन पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है, उसे एक हंस के चिल्लाने की, कूकने की आवाज आती है कहीं से। वो थोड़ा डर जाता है और वहां से चिल्लाते हुए द डॉग ऐसा चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है। और अब जब वो डर जाता है तो उसे जो है अपने हाथों में रखे हुए पंखुड़ियों का ध्यान नहीं रहता है और वो अनजाने में उन पंखुड़ियों को नीचे गिरा देता है। ठीक है। तो जैसे ही उस झुरमुट में उसे एक हंस के कूकने की आवाज आती है, थोड़ा डर जाता है और चिल्लाता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है।
कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, और उसके माता पिता भी उसके चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो उसे बुलाने लगते हैं, बेटे इधर आ, इधर आ। Who had now gone running in white capers round the banyan tree, और वो जो लड़का था एक बरगद के पेड़ के बीच बहुत सारे झुरमुट थे, उन झुरमुटों में घूम रहा था और घूमते हुए वो उनके पास आया। Gathered him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। और जब वो लड़का अपने माता पिता के पास आता है, वो जो है उसकी बाह को पकड़ के एक सकरे रास्ते पे, एक सकरा रास्ता जो कि घुमावदार था, बिल्कुल सर्पिले आकार का स्पाइरल शेप में, जो गांव में आपने देखा होगा कि जो पतले रास्ते होते हैं जो खास करके खेतों के बीच से गुजरते हैं, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। वो जो पेरेंट्स थे अपने बेटे को ले करके उस घुमावदार रास्ते से होते हुए मेले की तरफ चल देते हैं, जो कि सरसों के खेत के उस पार लगा हुआ था। ठीक है, and now we stop it here. Okay students, we stop the chapter here and we discuss the next part in our lecture, and I hope you will enjoy the story. Have patience, stay home and enjoy the study. Okay, thank you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.